Good morning, dear family. Yes, I'm so privileged and joy to be here with all of you. मुझे यहाँ पर आप लोगों के मध्य में आकर बहुत ही खुशी महसूस होती है। What is common between us is that though I come from a different place, is we serve the same Heavenly Father. हम सबके बीच में एक कॉमन बात क्या है कि जबकि हम लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, लेकिन फिर भी हम सभी का एक प्रेमी और आसमानी बाप है। We might be coming from different backgrounds, different language, different places, but in this room when we come here, तो हम सब अलग अलग स्थानों से आ रहे होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे, अलग अलग राज्यों से भी शायद आ रहे हैं, लेकिन हमारे मध्य में क्या चीज जो है साझा है। this place, what thing makes this special is God Himself and His body of Christ, we all of us. तो इस जगह के बारे में खास बात यह है कि हम सब जो है परमेश्वर की संतान हैं और ये उसकी देह है। And Jesus is the central focus of this meeting, of this place in all of us today. और हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है वो यीशु मसीह है आज यहाँ पर। We might be having different needs in our life today when we are sitting here. हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग जरूरतें हों। We might be passing through different circumstances that others might not know here. और हो सकता है कि हम अलग अलग परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों जो कि और लोग ना समझ पाए। But the encouragement that God, the Holy Spirit, knows our needs when we are sitting here, what burdens we have brought here. लेकिन पवित्र आत्मा इस बात को जानता है कि हमें किन बातों में प्रोत्साहन की जरूरत है, किन बोझों को लेकर हम जो अपने जीवन में गुजर रहे हैं। And He just not know the burdens that we go through, but He wants to really encourage us to revive our spirit today. ना सिर्फ वो हमारे बोझों को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आज हम अपने आत्मा में जो है प्रोत्साहित होकर यहाँ से। And He wants to speak to us that we may look to Him today. और वो चाहता है कि हमसे बात करें ताकि हम उसकी ओर देखें। Yes. And let Father, speak to our needs today. That is what our prayer in this place. और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों में आज हमसे बात करे। So in our Christian life, when we grow in our Christian life, we have seen mighty works of God in our life. तो जब हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमने परमेश्वर के बहुत ही महान कार्यों को देखा है। We have seen miracles, we have seen healings, deliverance in our life. हमने शायद अद्भुत कार्य देखे होंगे, चंगाइयां देखी होंगी, and countless blessings we have seen in our life. और बहुत सारे जो है महान कार्यों को अपने जीवन में देखा है हमने। And we all can testify and we are grateful that God has worked in our life amazing ways. That's why we are here today. और हम इस बात के लिए दे सकते हैं गवाही कि हम आभारी हैं अपने जीवन में और इसलिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। The God's faithfulness and goodness in our life, we all have experience in our life. और उसकी विश्वास योग्यता को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। But there are times that we are always focusing on the works of the Lord in our life. लेकिन ऐसे समय आते हैं जब हम सिर्फ परमेश्वर के कार्यों पर ही जो है अपना ध्यान लगाते हैं। What God has done for us becomes a focal point in our life. उसने हमारे जीवन में क्या किया है हम उस पर ही केवल ध्यान लगाते हैं। Our tendency is always looking what God can give to me, what God can do for me. और हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि उसने मेरे जीवन में क्या किया है और आगे भी मेरे लिए क्या कर सकता है। And we try to define God by what God can do for me. और हम उसकी परिभाषा ही ऐसे करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। If I tell you what is God for you, we might tell that God has done miracles in my life, answered my prayer, and that is what God is. अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन है तो आप मुझसे शायद कहेंगे कि वो है जिसने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए, उसने मुझे चंगाई दी और बाकी सब चीजें। Yes, that is the truth that God has done great things, miracles in our life. हाँ, ये सत्य है कि उसने मेरे जीवन में बहुत सारे महान कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं। But God has a desire to take us through more deeper with Him. लेकिन उसकी ये इच्छा है, उसकी चाहत है कि वो हमें अपने साथ रिश्ते में और गहराई में लेकर जाए। Yes, we start from the to God's miracles and God's hand and answers prayer. We start our Christian life from there. हाँ, ये सत्य है कि हम अपने मसीही जीवन को उसके अद्भुत कार्यों से और उसकी चंगाइयों से ही शुरू करते हैं। But God wants that we go further with Him to know Him more and more. लेकिन वो चाहता है कि हम इन अद्भुत कार्यों से, प्रार्थनाओं के उत्तरों से आगे बढ़ें। God wants that when nothing is happening in our life, that's why in those times also we may know Him closely. और वो चाहता है कि जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ खास ना भी हो रहा हो तब भी हम उसको और नजदीकी रूप से जानें। And we have all experienced that when we don't experience the answers of our prayer, the miracle that we are expecting, we tend to get restless in our life, anxious in our life. और हमने इस बात का अनुभव भी किया होगा कि जब हमें हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा होता, कुछ अद्भुत कार्य नहीं हो रहे होते, तो हमारे जीवन में एक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन या फिर
Anxious we हाँ, get, right? उदासीनता आ जाती है, Right. And आ जाती है। we when we pray, we look to our watch and we say, Lord, 12 o'clock I have prayed and 3 o'clock I need to have an answer of my prayer. और हम अपने अपने मतलब समय को देखते हैं कि मैंने 12 बजे प्रार्थना की थी और प्रार्थना को उत्तर नहीं। Watch and God's watch are different. लेकिन हमारा समय और परमेश्वर का समय जो है उसमें बहुत भिन्नता है Our ways and God's ways are very different, very high. और हमारे तरीके और परमेश्वर के जो तौर तरीके हैं उनमें बहुत भिन्नता है। So as I said that we started our Christian life knowing God's works in our life. और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो विश्वास की जो यात्रा है ये परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के द्वारा से शुरू हुई थी। But God wants to take us further, deeper with Him as we grow in our Christian life. लेकिन वो चाहता है कि हम जैसे जैसे अपने मसीह जीवन में आगे बढ़े हमारा रिश्ता उसके साथ और गहरा होता जाए। So there are two ways we can know our God, our Heavenly Father. तो दो तरीके हैं जिसके द्वारा से हम अपने परमेश्वर को जान सकते हैं। First, we can know God through His works. तो पहला तरीका ये है कि हम उसके कार्यों के द्वारा से उसको जानें। And we all have experienced that in our life. और हम सभी ने जो आज यहाँ मौजूद है अपने जीवनों में इसको अनुभव किया है। But the second way which I want to talk to you today, which is in my heart today to share, is लेकिन जो दूसरा तरीका है जो कि आज मेरे हृदय में जो बोझ है आपके लिए knowing God through His ways. वो ये है कि परमेश्वर को हम जाने उसके तौर तरीकों से। This is God's desire for all of us as His children, that we should know God through knowing His ways. और वो चाहता है कि और ये उसकी इच्छा है, आशा है कि हम उसको तौर तरीकों से जानें। Let's turn to Exodus 33:13. आइए देखते हैं Exodus 33. निर्गमन की पुस्तक उसका 13 verse. निर्गमन 33 उसका 13। And it says that, now then, if I found favor in your sight in any way, Moses says this, please let me know your ways so that I may know you, Lord. और यहाँ पर मूसा कह रहा है, और अब यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझे। Yes, he is saying that, please let me know your ways, Lord. In English it says, amen. और जैसे कि अंग्रेजी में भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है कि मुझे अपने तौर तरीके समझा, मुझे अपनी गति समझा। You know, Moses was leading Israelite people there. और हम जानते हैं कि वो कैसे जो इजराइल की जाति को जो है लेकर जा रहा था। He saw amazing work of God in his life. और उसने अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखा। But let's focus what's his desire of Moses in his life. He's saying, Lord, please let me know your way. लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उसकी जो रुचि थी, जो मुख्य रुचि थी, वो यहाँ पर लिखी है कि वो परमेश्वर के जो तौर तरीके हैं उनको समझने पाए। He has seen amazing work of God. Even a person who has departed at Red Sea, God has done that work through him. उसने ऐसे अद्भुत कार्यों को देखा कि उसने लाल समुद्र को बीच से दो भाग होते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की विधि But he is not taken up by the works of the Lord. लेकिन उसे परमेश्वर के कार्यों में उतनी रुचि नहीं है। This is the desire of a godly man, that Lord, please let me know. I want to know your way in my life, Lord. और ये एक मसीही व्यक्ति की जो है सही पहचान है कि वो परमेश्वर को जानना चाह रहा है। I want to know your purpose. I want to know your character in my life, Lord. वो ये जानना चाह रहा है कि परमेश्वर का जो चरित्र है वो कैसा है और उसका कार्य कैसा है जीवन में। And he wants to know God intimately as a heavenly Father, as a very close companion, as a friend. और वो चाहता है कि परमेश्वर को जाने की कैसा उसका स्वर्गीय पिता है और कैसा एक मित्र है, एक साथी है। And this is what God wants us in our life, brothers and sisters, to bring us to a spiritual maturity in our life. और यही है परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन में कि एक आत्मिक परिपक्वता हमारे जीवन में आए। Not to be just satisfied with His work, but let's go towards knowing God's ways in our life. और सिर्फ उसके कार्यों से ही हम संतुष्ट ना हो जाए, बल्कि उसकी गति को समझे, जैसे यहाँ लिखा है। Now, what a wonderful heart Moses has. He wants to know God's ways in everything that he is going through. और कितना सुंदर हृदय हम देखते हैं यहाँ पर मूसा का है, जो कि उसकी चाल को समझना चाहता है परमेश्वर की। You know, it is wonderful to know, especially when things are not working as we desired, in those circumstances, knowing God's ways. और खास तौर से उस समय पर जब हमारे जीवन में चीजें अच्छी नहीं चल रही होती, परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, उस समय हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की चाल क्या है यहाँ। For example, I'll give you an example. If my father is returning from abroad and I'm going to receive him at the airport. तो उदाहरण के रूप में अगर मेरे पिता जो है वो बाहर देश से
यहाँ आ रहे हैं और मैं उनको लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। As soon as he is coming out of the airport outside, and immediately I'm running to meet him. और जैसे ही वो एयरपोर्ट के दरवाजे से बाहर आ रहे हैं तो मैं उनको भागकर उनका स्वागत करने के लिए उनकी ओर जा रहा हूँ। The moment I met him, I immediately opens all his bag, what my father has brought for me. और जैसे ही मैं उनसे मिलता हूँ, मैं उसी समय जाकर उनके सारे जो सामान को खोलकर देखता हूँ कि वो मेरे लिए क्या लेकर आए। What my daddy has in all the bags, I open all the bags of my father there. और मेरे पिताजी मेरे लिए बाहर से क्या लेकर आए हैं, मैं सारे बैग खोलकर देखता हूँ कि वो मेरे लिए क्या लाए। And my father would be looking to me, he will say that, Father, my son, I want to hug you first. और वो चाहते हैं कि हे बेटे, ये तू क्या कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे आकर आलिंगन कर। I want you to look at me first. तू आकर मुझे देख पहले। This is what our situation sometimes in our Christian life also. और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही जो है हमारे साथ भी हमारे मसीही जीवन में होता है। Our eyes are always sometimes on the hand of God, और हमारी आंखें हमेशा से परमेश्वर के बढ़े हुए हाथ की ओर होती है, and not the face of God. और उसके चेहरे की ओर नहीं होती। And that's why my father will say at the airport, my son, please look at me, hug me first. और मेरे पिता मुझसे बोलेंगे कि ये तुम मुझसे आलिंगन कर, तू सबसे पहले ये काम कर। And everything I have brought in my bag is for you only. और जो भी सामान मेरे बैग में है वो तुम्हारे लिए ही तो है। That's what God's word says. Seek ye first the kingdom of God first. Everything will be added unto you. और इसलिए परमेश्वर कहता है वचन में कि सबसे पहले मेरे राज्य की खोज कर और सब चीजें जो है तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी तुम्हारे लिए। Can we go further deeper to look at God's face in our Christian life? क्या हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़कर उसके साथ अपने रिश्ते को और गहरा करना चाहते हैं कि नहीं? Can we have the desire like Moses, Lord, I'm not satisfied, Lord, only with the works of the Lord. हमारे जीवन में भी, क्या हमारे हृदय में भी ऐसी इच्छा है कि हाँ परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं और गहराई से तुझे जानूं। Lord, I want to know your ways. I want to grow in that maturity in my life, in my Christian life, Lord. मैं आपकी जैसी चाल चलना चाहता हूँ और अपने आत्मिकता में गहरा होना चाहता हूँ। Let's turn to Psalms 103 verse 7. आइए देखते हैं भजन संहिता 103 का 7। भजन संहिता 103। It says that he made known his ways to Moses and his acts to the children of Israel. वचन संहिता 103 के 7 में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। What it says that God revealed Moses his ways. मूसा को परमेश्वर ने अपनी गति समझाई। And children of Israel were very happy with the God's works in their life. और जो इजरायली जो जाति थी, जो लोग थे, वो परमेश्वर के काम से बहुत संतुष्ट थे। But we know in the Bible very well, we will not turn to that God was not happy with the Israelite people in their life. लेकिन हम जानते हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा से कि जो परमेश्वर था, यहोवा था, उस समय वो इजरायलियों से प्रसन्न नहीं था। Because in that 40 years of wilderness, Israelites were only looking to the hand of God in their life. क्योंकि उन 40 वर्षों में जबकि वो बियाबान में घूम रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्यों को देख रहे थे। But in this 40 years, Moses was focusing on God's face, God's ways. लेकिन उन 40 वर्षों में मूसा जो है परमेश्वर के चेहरे को देखना चाह रहा था, उसकी चाल को समझना चाह रहा था। Who God is, what He has kept in His heart for me. कि परमेश्वर कौन है और उसके हृदय में मेरे लिए क्या योजनाएं हैं। And similarly, God is looking for those Moses in this church today. और आज के दिन परमेश्वर इस कलीसिया में भी उस मूसा को ढूंढता है। Those Moses who will desire God's ways more than His work. कौन है वो मूसा जो यहाँ बैठे हैं, जो उसकी चाल को समझना चाहते हैं, उसके हृदय को चाहते हैं, उसके काम को नहीं। We might be satisfied with His works, but God wants, I want to take you deeper, my son, my daughter. वो हमसे कहता है कि तू मेरे काम से ही संतुष्ट ना हो, लेकिन मेरे पुत्र या मेरे पुत्री, तू मुझसे और रिश्ते में गहरा हो। There are tendencies in our life that we only focus on the blessings of God in our life, and that becomes a dangerous ground to stand on. ये हमारे साथ अक्सर होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की जो आशीषें हैं उन पर निर्भर होते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक जगह है। I'll give you an example. I recently learned when I feed I have 2 daughters, young daughters. When I feed them poha at home. तो एक उदाहरण ये है कि जब मैं अपने घर में अपनी जो 2 छोटी बेटियां हैं उनको जब खिलाता हूँ, पोहा खिलाता हूँ जैसे। So there is a peanut in that, right? When we eat poha, there is a peanut also in that. तो जानते हैं कि पोहा में मूंगफली भी डलती है। So when I stretch a spoon to feed my daughter, she will only be interested in eating peanut. That's it. तो जब मैं उसको खिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ, तो वो पोहे में नहीं, लेकिन उसके अंदर जो मूंगफली है उसमें उसकी रुचि होती है। So what smartly they will do, when I put that spoon towards them, they will immediately take the peanut and shut their mouth.
तो वो लोग क्या करते हैं कि जब मैं चम्मच में लेकर उनको देता हूँ पोहा, तो वो लोग मूंगफली को ले लेते हैं और अपना मुंह बंद कर लेते हैं उससे। And after some time, as a father, I learned a trick. तो एक पिता होने के नाते मैं भी एक चीज को समझ गया। In spoon, I started putting the peanut behind that poha. You know, front side there is a poha, and behind there is a peanut. मैं क्या करता हूँ कि चम्मच में जो है मूंगफली को पोहे के पीछे रखता हूँ और पोहे को आगे So रखता there is no option for them. हूँ, तो उनके पास कोई और मतलब बात नहीं रह जाती। So if they have to reach out to that peanut, they have to eat that poha. तो उस मूंगफली को पाने के लिए उनको पोहा खाना ही पड़ता है। And this is how God does in our life. You know, we are only focusing on the works of the Lord. और यही चीज जो है परमेश्वर हमारे जीवन में भी करता है, क्योंकि हम उसके कार्यों पर ही जो है केंद्रित रहते हैं। As a father, I know what is healthy for my daughters. एक पिता होने के नाते मुझे मालूम है कि मेरी बेटियों के लिए क्या चीज अच्छी है What खाने will में। satisfy their hunger? I know very well. Peanut will not do that. और मुझे पता है कि उनकी भूख किस चीज से मिटेगी, मुझे पता है कि मूंगफली से नहीं मिटेगी। And how much our Heavenly Father knows that what will feed our Christian life, our hunger and thirst in Christian life. और यही बात हमारा परमेश्वर भी समझता है कि क्या चीज जो है वो हमारे मसीही जीवन को जो है तृप्त करेगी। He wants that more than His work. When we know His ways, we get the spiritual satisfaction in our life. और वो जानता है कि जो है उसके कार्यों से ज्यादा जो है उसकी चाल को या उसकी गति को समझने से जो है हमें संतुष्टि मिलती है। Yes, God's works definitely excites us. उसके कार्यों को देखकर हम प्रोत्साहित तो होते ही हैं, But when we know His ways, we become spiritually stronger and mature. लेकिन जब हम उसकी चाल को समझते हैं तो हम आत्मिक रूप से ज्यादा दृढ़ होते हैं, ज्यादा परिपक्व होते हैं। Have we stuck up today with God's work in our life? We are just, stopped there or stuck up there. तो क्या हम उसके कार्यों पर ही अब तक अटके हुए हैं? God's today is calling all of us today to go deeper to know His ways, brothers and sisters. और वो चाहता है कि हम उसकी चाल को और उसके साथ जो रिश्ते में है और गहराई से उतरे। When Jesus was on earth, जब यीशु मसीह संसार में था, different kinds and types of people came to meet Jesus. अलग अलग प्रकार के जो लोग थे वो उससे मिलने के लिए आते थे, At different levels they met Jesus. और वो अलग अलग स्तर पर जो है उससे मिलते थे। First type I would like to mention here. और जो पहला स्तर था या जो पहला टाइप था, वो There were a crowd who came to see Jesus' miracle. एक भीड़ जो है एकत्रित होती है उसके अद्भुत कार्यों को देखने के लिए। And there was no food. 5,000 people were there, and Jesus did a miracle, and people were astonished, surprised what God can do. Jesus did for them. और 5,000 लोग जो है वहां पर मौजूद थे, और वो इस बात का उम्मीद कर रहे थे कि देखते हैं परमेश्वर हमें कि यीशु मसीह हमारी भूख कैसे मिटाता है। They saw Jesus' amazing work. They were impressed by what Jesus did, and they came for the benefit. और जब वहां पर उसने लोगों को भोजन किया तो वो उसके कार्यों से बहुत ही चकित हुए। Yes, and they came for some or the other benefit to Jesus. और वो किसी फायदे के लिए उसके पास वहां पर आए थे। Second type of group of people, और दूसरे we read in Gospels about them. और सुसमाचार में ही हम इन लोगों के बारे में The 70 people whom Jesus gave the power and authority to go different places and share the gospel. और दूसरे प्रकार के लोग थे, वो थे जो 70 लोग जो उसके पास आए थे कि और यीशु मसीह ने उनको ये सामर्थ्य दी थी कि वो जाकर जो है सुसमाचार का प्रचार करें। So they were interested what God has entrusted to them, the ministries and all the works that they were taken up with. तो उनको अलग अलग तरह की सेवकाई और अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य दी गई थी। Then we go further. There were again third type of people here. और तीसरे प्रकार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। 12 disciples of Jesus. We know them very well. जो 12 चेले थे जिनके बारे में हम भली भांति जानते हैं। They left everything and they followed Jesus in their life. उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ त्याग दिया और यीशु मसीह का अनुसरण किया। Again in that 12 disciple there is one more group, 3 people staying there who is more closer to Jesus there. और उन 12 चेलों में से भी 3 लोग हैं जो कि उससे और नजदीक हैं। They were more closer to Jesus. We know them. वो उसके और निकट, यीशु मसीह के और निकट हैं। Again we go further. There is one more type of person his name is John. और इन तीनों में से भी एक था यूहन्ना, who was so close to Jesus and on his chest he used to abide and very much. और इतना नजदीक था कि वो उसकी छाती पर सर रख के रहा करता था। So we see different levels of people connected at different level to Jesus. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से भिन्न लोग जो हैं वो अलग अलग तरीकों से उससे रखते थे। And today also in church people are attaching or connecting with God and His people and His church at different levels. और आज भी कलीसिया में जो है अलग अलग लोग यीशु मसीह से अलग अलग तरीकों से रिश्ता रखते हैं। They connected with God and His church at different levels. और वो परमेश्वर से और उसकी
कलीसिया से जो है अलग-अलग तौर से जुड़े हुए हैं। We can examine our life, which category we are in today. और हम इसका खुद आकलन करें अपने जीवन का और We might have to progress one after the from that crowd. We have to progressively come to the near of God's Jesus heart. और हमें उस भीड़ से हटकर उस भीड़ से उठ के जो है यीशु मसीह के हृदय के नजदीक आने की जरूरत है। Not just be satisfied with the benefit of Jesus, but growing closer and closer to the heart of Jesus. और सिर्फ उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका फायदा उठाकर ही हम संतुष्ट ना हो जाए, बल्कि उसके मन के नजदीक पहुंचे। This is the spiritual maturity Lord wants to bring all of us as a church. और ये है वो आत्मिक परिपक्वता जो कि चाहता है परमेश्वर सब। This is what Moses was leading Israelites. और मूसा भी जो है जाति का जब लीड कर रहा था तो वो इसी प्रकार का व्यक्ति था। He was a broken man and he wants to know God's ways in his life. वो अंदर से एक टूटा हुआ व्यक्ति था और चाल को समझना चाह रहा था। And this is what, brothers and sisters, God wants to build his church with his broken people. और आज के दिन भी परमेश्वर जो है वो जो है टूटे हुए लोगों से जो है अपनी अपनी इस कलीसिया को बनाना चाहता है। The broken people have a desire to know God's ways in their life. और इन टूटे हुए लोगों को जो है परमेश्वर की जो है चाल को समझने की चाहत है अंदर से। They are not stuck up with God's work, but they really want, Lord, in my brokenness, my circumstances, I want to know your ways, Lord. और वो सिर्फ उसके अद्भुत कार्यों से ही संतुष्ट नहीं है, वो अपने इस टूटेपन में चाहते हैं कि हे परमेश्वर मैं तेरी चाल को समझना चाहता हूँ। And when you have a desire to know his ways in brokenness, और जब आपकी ऐसी इच्छा होगी कि हम उसकी चाल को समझें आपके इस टूटे हुए परिस्थिति में, then we will be part of God's body. हम उसके देह का एक हिस्सा बन जाते हैं। We might be part, but we are connected at different levels maybe. हम हो सकता है कि हम उसके देह का भाग तो हों, लेकिन हम अलग-अलग तरीकों से उससे जुड़े हुए हैं। But God is taking us through some brokenness in our life. लेकिन परमेश्वर हमें अपने जीवन में से एक किसी न किसी जगह पर एक टूटेपन से लेकर जा रहा है। That our desire should change, Lord. I want to desire your ways. I want to know your ways in my life, Lord. और वो इसलिए कर रहा है ताकि हम उसके तौर तरीकों को समझ पाए। ऐसी जो है एक चीख हमारे अंदर से निकले। So the true church is the people, broken people in the church. तो एक सच्ची कलीसिया वो है जो कि टूटे हुए लोगों से बनी हुई Who है। really want to desire, Lord, no matter what happens in my life, but as a body of Christ, I want to know your ways, Lord. और वो ये चाहते हैं कि हे परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी चाल को समझ पाऊँ। And when we have such desires in our heart like Moses, our family will become that church first. और फिर हमारे मन में, हमारे हृदय में ऐसी इच्छाएं आती हैं और हमारा जो फैमिली है, परिवार है, वही हमारा कलीसिया बन जाता है। Husband and wife, when we both together desire, Lord, we want to do your ways in our life. और पति पत्नी भी जो है वो सबसे पहले कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ। And there the true church is born in the family. और फिर जो है एक सच्ची कलीसिया परिवार के अंदर जन्म लेती है। And then that extension comes here as a body of Christ every Sunday that we meet in here. और फिर वही छोटा सा परिवार जो है आगे बढ़कर यहाँ पर आता है रविवार को और इस कलीसिया का भाग बनता है। Do we have a desire to build the body of Christ, the church, dear brothers and sisters? क्या हमारे अंदर ऐसी एक चाह है, ऐसी इच्छा है कि हम एक यहाँ पर एक सच्ची देह जो है कलीसिया परमेश्वर की, वो यहाँ पर बनाना चाहते हैं? Then we have to come to that level that, Lord, I want to know your ways in my life, Lord. तो फिर हमें अपने जीवन में उस तरह पर आना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, मैं आपकी चाल को समझना चाहता हूँ। Through those broken people only God can build. और सिर्फ टूटे हुए लोगों के द्वारा से ही जो है परमेश्वर अपनी कलीसिया को बना सकता You है। know, Exodus 25, 26, 27, we will not turn there. और हम जानते हैं निर्गमन 25, 26 और 27। In these chapters, when we read, God gave a plan, a detailed plan how to build a tabernacle. और इन अध्यायों में जो है परमेश्वर ने एक अपनी जो वेदी होती है उसको बनाने का जो है समझाया कि वो कैसे बनाई जाएगी। Lot of people were there, very smart people, very intelligent people in that Israelites, but God only can give the plan to build His church to the broken people. और उस समय इस्राएली जाति में बहुत सारे समझदार लोग थे, बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे, लेकिन सिर्फ टूटे हृदय के लोगों को ही जो है परमेश्वर उस बात को समझाने पाया। The brother and sister who desires, Lord, I want to know your way like Moses, God will give you plan to build His church. तो दो भाई या बहन टूटे हृदय के हैं, परमेश्वर उन्हीं को अपना जो है योजना समझा सकता है कि अपने कलीसिया को कैसे स्थापित करना है। And yes, we might be going through today some valleys, some brokenness in our life. और हो सकता है कि हम अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे होंगे। And we might be thinking, Lord, why I am passing through these circumstances in my life, in my family. और हम सोच रहे होंगे कि हे परमेश्वर, क्यों मैं अपने जीवन में
इस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ। There are times I don't understand, Lord, why and how long I have to go through this, Lord. और बहुत समय ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि हे परमेश्वर, मैं कब तक इस परिस्थिति से होकर गुजरता रहूंगा या But रहूंगी। through that brokenness, God wants to reveal His ways to us. लेकिन उस टूटेपन के द्वारा से जो है परमेश्वर अपनी चालों को, अपनी गति को हमें समझाना चाहता I है। want to share a testimony of my life. और मेरे जीवन की एक गवाही है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता How हूँ। God broke me. परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार से तोड़ा। And after my studies, I thought I'll be easily getting jobs in my life. और जब मैंने अपना ग्रेजुएशन की, अपनी पढ़ाई की पूरी, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत आसानी से नौकरी मिल I जाएगी। was very good at studies. I thought I'm ranking and everything. I can get easily jobs in my life. और मैं पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था, मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो मुझे लगा कि मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। But initial career, my 9 to 10 years of my career was completely failure. और जो मेरे शुरुआती जो 9-10 साल थे मेरे कार्य स्थान के, वो बहुत ही खराब रहे मेरे लिए। I tried my level best, but I could never get any success in my life. और मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे अपने जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पा रही I was fired from 3 jobs. मैं 3 जो है जॉब से निकाला गया। There was a terrific and cruel bosses I faced in my life. और मुझे बहुत ही खराब जो है मैनेजर लोग मिले। Every day, 15 to 16 hours of working. और मुझे रोज 15 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। There was time I was jobless more than 2 years. और 2 साल, लगभग 2 साल तक मेरे पास नौकरी नहीं थी। There was injustice, there was rejection in my life. और मेरे साथ बहुत ही खराब बर्ताव किया गया कामों में। People were scheming against me. और लोग मेरे विरुद्ध जो है चाल चल रहे थे। And I could not able to understand why I'm going through all this, Lord. और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन चीजों से होकर परमेश्वर। And 10 years was a long period. और 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। I was thinking that I'm a failed person. I could not able to look at myself. That much failure was there in me. और मैं इतना हार चुका था कि मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल ही बेकार व्यक्ति हूँ और मुझसे कुछ नहीं हो सकता। And I started doing all the lowly jobs and salesman and garage work and everything I tried in my life. और मैंने हर प्रकार का कार्य अपने जीवन में किया, सेल्समैन का या फिर किसी गैराज में काम करना। And there was a time I lost complete confidence in my life. और मैं अपने जीवन में से पूरी तरीके से अपना जो है कॉन्फिडेंस जो है जा चुका था। And God has His own ways to break us. और परमेश्वर के अपने अपने तरीके होते हैं अलग अलग लोगों को तोड़ने के। And I remembered, God, that I am trying to get success my career without God. और तब मुझे समझ में आया कि मैं अपने जीवन में सफलता चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर के से हटकर उसके बिना। I want career, I want ambition without Christ, and I am suffering. I'm not able to reach to that level. और मुझे समझ में आया कि मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन मसीह के द्वारा नहीं। And God made me realize, apart from me, you cannot do anything. और मुझे परमेश्वर ने इस बात को समझाया कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। There was a period of darkness in my life. I could not see any light around me. What is the future I have, Lord? और एक समय में इतना अंधेरा था मेरे जीवन में कि मुझे कहीं से भी रोशनी नजर नहीं आ रही थी कि मैं अपने जीवन में क्या करूं। But I realized that apart from God, I cannot do anything. लेकिन मुझे समझ में आया कि परमेश्वर से हटकर मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। Yes, the breaking was such an extent in my life. और मेरे जीवन में जो टूटापन था वो इस हद तक हो चुका था। My confidence broke down. और मेरा जो हियाव था वो पूरी तरह से टूट चुका था। And I started looking to Lord. This life belongs to you, Lord. और तब मैंने परमेश्वर की ओर मुड़कर देखा और कहा कि मेरा जीवन आपको समर्पित है पिता। You know, I cannot do anything with my life, with all the accolades, my achievements, my ranks and everything. I cannot do anything with that, Lord. और मैंने कहा कि हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन की सारी सफलताओं के द्वारा से सारी जो उपलब्धियां हैं उससे कुछ नहीं कर सकता पिता I परमेश्वर। started asking, why, Lord, in my life? How long this will continue, Lord? और मैं पिता परमेश्वर से पूछा था कि ये कब तक मेरे जीवन में ऐसा ही चलेगा पिता परमेश्वर। And then God says, in that brokenness, God has some plans for my life. और तब मुझे पिता परमेश्वर ने कहा कि इस टूटेपन में भी मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। In such an extent, I was failure that in my college, my professor used to give an example of failure, pointing at to me. और मैं इस प्रकार से फेल हो चुका था कि जो मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर थे बोलते थे कि उसको देखो, वो इतने अच्छे नंबर आता था और आज वो कहाँ है। That was the extent that I still remember that it was very difficult to take me those areas. और इतनी खराब परिस्थिति थी जहां से मुझे परमेश्वर ने लेके गुजारा। I became the object of laughter in my life. और मैं लोगों के ठट्टों का जो है एक केंद्र बन गया। Utterly failed and completely hopeless in my life. और पूरी तरीके से
नाकामयाब और फेल हो चुका था जीवन में। My dear young brothers, I want to talk to you that are we trying to get anything in our career without Christ? और यहाँ जो मेरे जवान भाई बहन बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम अपने करियर में, पढ़ाई लिखाई में जो है परमेश्वर के बिना उससे हटकर कुछ पाना चाह रहे हैं? Does career and ambition has become our idol in our life? क्या हमारा करियर और जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन में एक प्रकार की मूर्त बन चुकी है? But God wants to bring us to the level that will you know my way, my son, my daughter? लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्री, तू मुझे जानना चाहता है या नहीं? Many times we don't understand God's ways in our life. और हम बहुत बार जो है उसकी चाल को अपने जीवन में समझ ही नहीं पाते। We often cry before closed doors in front of us. और हम बहुत बार बंद दरवाजों के पीछे रोते हैं, आंसू बहाते हैं। Whenever we see present failure, we try to, we are in pain in that area. और जब हमारे सामने कोई नाकामयाबी आती है तो हमें वहां से बहुत दुख महसूस होता है। I could able to understand that God has a plan through this brokenness in my life. और मैं इस बात को समझने पाया कि इस टूटेपन के द्वारा से भी जो है परमेश्वर की कुछ योजना है मेरे जीवन में। But when there is seemingly impossible situation, God can lift us in those areas also. और जब परिस्थितियां एकदम ही खराब हो जाए, वहां से भी And I started grasping, understanding God's ways in my life. और मुझे भी धीरे धीरे इस बात की समझ आने लगी कि उसकी चाल क्या है हमारे जीवन में। Lord, my greatest need is Christ, Lord. और मुझे समझ में आया कि जो है सबसे बड़ी जरूरत मेरे जीवन में है वो है यीशु मसीह। And I want to testify that God restored everything which I lost in my life. और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे जीवन में वापस जोड़ दिया। Much more than when we singing that मांगने से ज्यादा, that was God restored everything to me. और जैसे हमने वो गीत गाया कि मांगने से ज्यादा तुमने मुझे दिया है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी सब कुछ मुझे मांगने से ज्यादा उसने दिया। Yes, my dear brothers and sisters, are we going through any valley of brokenness in our life today? क्या हम आज किसी इस टूटेपन की घाटी से होकर गुजर रहे हैं? We not able to understand God's ways in our life, maybe in these valleys. और इन घाटियों में हमें शायद परमेश्वर की जो चाल है, उसकी जो योजनाएं हैं वो समझ में ना आए। But God wants to reveal His ways upon us. लेकिन वो जो योजनाएं हैं वो हमको प्रकट करे। When the disciples were traveling with Jesus in that boat, और जब चेले यीशु मसीह के साथ उस नाव में सफर कर रहे थे, the storm and the winds arise there. It came a storm there. और वो आंधी और तूफान जो है वो वहां पर आई। We know in Mark chapter 4 we read that Jesus was sleeping there. और मरकुस की पुस्तक में जानते हैं कि उस दौरान भी जो है यीशु मसीह उस नाव पर सो रहा था। And disciples were so afraid, they were so terrified that Lord, we are going to drown in this storm, Lord. और जो चेले थे वो ये बोल रहे थे कि हे यीशु मसीह, हम तो यहाँ पर डूबे जा रहे हैं। Are we facing similar that Jesus in our boat, but still we are facing storm in our life? और क्या हम आज उसी परिस्थिति में है कि जबकि यीशु मसीह हमारे साथ नाव में है, फिर भी हम आंधी तूफान झेल रहे हैं? We are facing winds of uncertainty, financial crisis in our life. और हमारे जीवन में जो है ऐसी परिस्थितियां हैं, मतलब या तो आर्थिक समस्याएं हैं। There is a future related about our children. We feeling that there is uncertainty about my children. और हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर हम आज Winds are so heavy. I'm fearful. I'm anxious in front of this. और ये आंधी तूफान, ये लहरें जो है इतनी ज्यादा भयावह हैं कि मैं चिंता में पड़ गया हूँ। And Mark 4:38, disciples said, और मरकुस 4:38 में it says that यहाँ लिखा है, Lord, don't you care we are drowning? यहाँ पर जो है चेले उससे कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? Is this the secret silent cry inside of us today? क्या हमारे अंदर भी आज ऐसी ही एक चीख है That Lord, don't you care about my finances, Lord? कि हे परमेश्वर, क्या तुझे मेरे आर्थिक स्थिति की चिंता नहीं? Don't you care about my children, my family? क्या तुझे मेरे परिवार या मेरे बच्चों की चिंता नहीं है? Don't you care how long I am going through Lord such circumstances in my life? क्या तुझे चिंता नहीं, इस बात की फिक्र नहीं कि मैं कब से इसी परिस्थिति में हूँ? I'm struggling against these winds, these storms, Lord. Don't you care? You are sleeping in this boat. और तू यहाँ पर सो रहा है जबकि मैं अकेले ही इस आंधी तूफान का सामना कर रहा हूँ। Lord, I'm trying and I'm tired, Lord. और मैं कोशिश कर करके थक चुका हूँ, हार चुका हूँ परमेश्वर। And we are doubting on God's love for us, maybe. और हम इस बात पर शक करते हैं कि क्या वो हमसे वाकई प्रेम करता भी है या नहीं। Lord, have you forgotten me, Lord? क्या तू मुझे भूल गया है परमेश्वर? Don't you care about my life, Lord? क्या तू मेरे जीवन के बारे में चिंता नहीं करता? Or through this, brothers and sisters, through these storms and waves,
God wants to reveal His ways. और इस आंधी तूफान के बीच जो है परमेश्वर जो है अपने तौर तरीकों को आप पर प्रकट करना चाहता है। 39 verse we read that Jesus stood up and calmed the storms there. और उसके अगले ही वचन में हम पढ़ते हैं कि जो है यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ, उसने जो है उस आंधी तूफान को शांत किया। But I see a greater miracle in verse 41 there. और लेकिन 41वें वर्ष जो है वचन में हम पढ़ते हैं एक और अद्भुत बात। Can you read, brother? और हिंदी में यहाँ ऐसे लिखा है 41 में, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। Yes, so we see through this storm that revelation of God expanded. और यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस आंधी तूफान की वजह से जो है परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया वहां पर। So before this storm, disciples were like, Jesus is like a medical doctor. और इस आंधी तूफान से पहले, इस हादसे से पहले जो है चेले समझते थे कि वो तो एक डॉक्टर की तरह है, एक वैद्य की तरह है। Somebody goes and he heals them. और कोई उसके पास आता है और वो उसको चंगाई देता है। Maybe a little bit power he has, maybe somebody's evil spirit and they go to him, he heals them and feed 5,000 maybe. और उसके पास थोड़ी बहुत सामर्थ्य भी है, क्योंकि कोई आता है किसी बुरी आत्मा के साथ, उसको वो निकालता है और साथ ही साथ वो 5,000 लोगों को खाना भी खिला सकता है। But after passing through this storm, they got a bigger revelation of God. लेकिन इस आंधी तूफान से निकलने के बाद उन चेलों को एक और बड़ी बात जो है उसकी प्रकट हुई। Oh, this Jesus has authority and power over creation. कि ये ऐसा प्रभु है जिसकी सृष्टि पर भी सामर्थ्य है। Every wind, every storm listens to this Jesus. और ये आंधी और पानी भी जो है उसके ऊपर भी इसका आधिपत्य है, वो उसकी बातों को सुनते हैं। So earlier the picture of Jesus was very small. और इससे पहले जो है यीशु मसीह उनके लिए बहुत ही एक संकीर्ण सा उसके एक व्यक्ति But था। after the storm, the picture of Jesus is enlarged now. और इस आंधी तूफान के बाद जो है यीशु मसीह को वो एक बहुत ही अलग नजरिए से देखने लगे। And similarly, my dear brothers and sisters, God wants to expand His picture, His revelation on us. और आपके साथ ही परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसे एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही बड़े नजरिए से देखें। Can we speak to Lord, Lord, I really want to know your ways while passing through this storm in my life. क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुझे और गहराई से जानना चाहता हूँ, तब जबकि मैं इस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूँ। And when we pass through that, when we know God's ways, और जब हम उसकी चालों को समझने लगते हैं, God's ways leads to complete rest in our life. उस चाल को समझने के बाद हमारे जीवन में एक प्रकार की शांति आती है। Will we trust Almighty God with all our circumstances today? क्या हम अपनी हर एक परिस्थिति में जो है परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं? Regardless of what we are going through today, He wants to give us complete rest in our life today. और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, वो चाहता है कि हमारे जीवन में एक प्रकार की शांति और ठहराव आए। We are in unrest because we are only focusing on God's works at times in our life. हम हमारे जीवन में अशांति इसलिए है क्योंकि हम उसके कार्यों पर ही सिर्फ ध्यान लगाते हैं। The murmuring, the complaining about circumstances, about people. हम आभारी नहीं हैं, हम असंतुष्ट हैं, हम औरों के बारे में इसीलिए शिकायत करते हैं। The moment we will focus on God's ways, our murmuring and complaining will be end to the end. जब हम उसकी चालों को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे, तब ये सारी शिकायतें, ये सारी जो आभारी ना होना है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारे। And this is what God's plan is, that God wants to keep us in complete rest, my dear brothers and sisters. और यही जो है उसकी एक योजना है कि वो चाहता है कि हमारे जीवन में ठहराव आए और शांति आए। Let's turn to Hebrews 3:10. आइए देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन। They always go astray in their heart, and they did not know my ways. तो इब्रानियों 3:10 में लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। Because they did not know God's ways, God was not happy with them. क्योंकि वो उसके मार्गों को समझ नहीं पाए, इसलिए वो उन लोगों से प्रसन्न नहीं था। God wanted them to come up higher from the works, come to the ways. परमेश्वर चाहता था कि वो और ऊपर उठे और वो उसके कार्यों से उठकर उसके मार्गों को समझ पाए। God was very angry with them. और वो उनसे बहुत क्रोधित था। Because always they are sitting in a primary grade called God's work. और वो सिर्फ एक निचले स्तर पर ही जो कि उसके कार्यों पर उनका विश्वास टिका हुआ था। And that was the standard. One classroom only they are sitting year after year, 40 years in God's work. और उनका स्तर आगे बढ़ नहीं पा रहा था। 40 सालों से वो सिर्फ उसके कार्यों पर ही अटके हुए थे। God wanted to promote them to the next class, that was God's ways. और वो चाहता था कि वो अगले क्लास पर, अगले स्तर पर जो है
आगे बढ़कर जाए, जो कि उसके मार्गों को समझने का स्तर था। And how we reach there by brokenness, by passing through circumstances that God allows in our life. और हम वहां कैसे पहुंचते हैं, वो है हमारे टूटेपन के द्वारा से, जो कि हमारे जीवन के मुश्किल परिस्थितियों से होने से आती है। We read in Habakkuk chapter, the book of Habakkuk, और हम हबक्कुक की पुस्तक को देखेंगे, first chapter, second and third verse. हबक्कुक का पहला अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वचन। He has a lot of complaint, lot of questions in his heart. Habakkuk has here. और वो बहुत ही शिकायतें कर रहा है, उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। In second and third, he says, "How long, Lord, must I call for help? But to you don't listen. I cry out to you violence, but you do not save." और वो यहाँ कहता है दूसरे वचन में, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? Habakkuk here complaining because he was expecting God to do something. और हबक्कुक जो है यहाँ पर शिकायत कर रहा है, क्योंकि वो उसकी कुछ उम्मीदें थी परमेश्वर के साथ। He was expecting God to do something, but it was not visible there. उसकी उम्मीद थी कि परमेश्वर उसके लिए वहां कुछ कार्य करेगा, लेकिन वो उस कार्य को होता हुआ देख नहीं पा रहा था। There was a violence, there was an injustice during that time. और उस समय वहां पर बहुत ही उपद्रव था, बहुत ही नाइंसाफी थी उस There was जगह a पर, suffering also in that place. और बहुत ही ज्यादा रोना और चिल्लाना था। So always Habakkuk wanted to see God's work in all those circumstances. और वो चाह रहा था कि उन सारी परिस्थितियों में जो है परमेश्वर के कार्यों को वो देखने पाए। But God wanted Habakkuk, and he opened his eyes to come up higher. और लेकिन परमेश्वर ने जो है उसकी आंखों को खोला और वो उसको एक और स्तर पर लेकर आया। That Habakkuk, will you trust my ways regardless if you see my work also? कि हे हबक्कुक, क्या तू मेरे कार्यों पर क्या तू मेरे मार्गों पर भरोसा रखने पाएगा, जबकि मेरे कार्य वहां ना हो रहे हों? And this is what God wants us to teach today also. और यही बातें जो है परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है। This is the life of rest as a believer in. और ये है वो शांति का जीवन एक मसीही व्यक्ति होने के नाते। And we read Habakkuk 3rd chapter 17 and 18, very familiar verse. We all know this. और हबक्कुक 3, 17 और 18 इन वचनों को हम भली भांति जानते हैं। We see that if I don't see that, but I want to focus that yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The last portion. और यहाँ पर हबक्कुक कहता है कि चाहे मैं ये ना होता हुआ देखूं या फिर वो ना होता हुआ देखूं, फिर भी मैं जो है परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। What he's trying to summarize here, that Lord, more than the works, I'm content in your ways. और जो यहाँ बात हमें सीखने को मिलती है हबक्कुक के द्वारा, कि मैं तेरे कार्यों से द्वारा तेरे And I will rejoice in it. और मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। He shifted his focus from God's work to God's ways. और उसने अपना जो ध्यान है वो उसके कार्यों से हटाकर उसके चालों पर, उसके मार्गों पर And लगाया। his prayer completely changed. और उसकी प्रार्थनाएं बिल्कुल बदल गई। God's ways are much higher than our ways, brothers and sisters. और परमेश्वर के जो मार्ग हैं वो हमसे बहुत ही भिन्न, बहुत ही ऊपर हैं। His wisdom is infinite, eternal. उसकी जो समझ है वो चिरस्थायी है। When we go to know God's ways, our questions will stop. और जब हम उसके मार्गों को समझने लगेंगे तो हमारे सवालात जो है वो खत्म हो जाएंगे। One of the way we can know God's way is और एक तरीका उसके मार्गों को, उसकी चालों को समझने का जो है written in Psalms 25:9. वो हमें मिलता है भजन संहिता 25:9 में। It says that he guides the humble in what is right and teaches them his ways. यहाँ लिखा है भजन संहिता 25:9 में, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। It's very clearly in Hindi says that to humble he will teach, he will show them his way. और यहाँ पे साफ तौर से लिखा है हिंदी में कि नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। Who are the eligible people? Who is qualified? The humble people. तो कौन है वो जो लोग उसके मार्गों को देख पाएंगे? वो लोग जो नम्र हैं। When we are proud, we always demand for clarification, for justification. जब हम अहंकारी होते हैं तो हमें सब चीजें साफ साफ और क्यों वैसा हो रहा है वो देखने की चाह रहती है। But a humble person will submit to God's ways completely. लेकिन जो नम्र व्यक्ति है वो परमेश्वर के मार्गों पर पूर्ण रीति से जो है समर्पित होगा। He is trusting that what God has for me is best for me. और वो इस बात पर विश्वास रखता है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो मेरे लिए उत्तम है। And Second Chronicles, we read 17th chapter. और दूसरे इतिहास, Second Chronicles 17:6. दूसरा इतिहास 17:6 को देखेंगे। We read about King Jehoshaphat here. और यहोशाफात जो राजा था उसके बारे में हम पढ़ते हैं। If we can read 6 verse. तो यहाँ पर लिखा है अध्याय 17:6 में, और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया, फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। So English it says that
he desired to know God's ways, this king. और जैसे यहाँ पर लिखा है कि उसने यहोवा के मार्गों को जानने की इच्छा की। So when we have a desire to know God's ways, मतलब हमारे अंदर ये इच्छा होती है कि हम उसके मार्गों को जाने। what we will do, this king did, he removed all the idols. और इस राजा ने क्या किया, उसने यहूदा के जो ऊंचे स्थान थे वहां पे सारे जो मूर्ति थी उनको हटा दिया। Are there any idols in our life that we are holding on so tightly more than God in our life? क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी मूर्तें हैं जो हमने परमेश्वर से ज्यादा मजबूती से पकड़ कर रखी हुई हैं? So occupied, so busy with these idols in our life. क्या ऐसी मूर्तें हमारे जीवन में जिनको लेकर हम बहुत ही हमारा ध्यान उन पर केंद्रित रहता है हमेशा? That may be honor, that may be a career, maybe. हो सकता है वो सम्मान का हो या फिर किसी अच्छी नौकरी का हो। It's good to have this, but is it become your idol? ये चीजें अच्छी हैं हमारे जीवन के लिए कि क्या वो हमारे जीवन में एक मूर्त बन गई है? Is it a good reputation has become an idol in our life? क्या एक अच्छा नाम हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन? Comfortable, settled life, where I don't need God, it has become an idol for us. क्या एक आरामदायक जीवन जहाँ पर हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, क्या वो एक मूर्त है हमारे जीवन में? As money has become idol in our life. या फिर पैसा, क्या वो हमारे जीवन में एक मूर्त है? Recently I was facing some injustice in my office. हाल ही के दिनों में मेरे ऑफिस में कुछ नाइंसाफी हुई and some false accusations I was facing in my life, in my office. और मेरे ऑफिस में मुझ पर जो है कुछ झूठे आरोप लगाए गए। A female employee, charged some false accusations, and it was brought to the HR, to my boss, and all the management and everywhere. और एक महिला है ऑफिस में, उन्होंने मुझ पर कुछ झूठे आरोप लगाए और मेरे मैनेजर और HR और ऊपर के भी सब लोगों तक वो बात गई। And everyone listened to that employee and not to me. और सभी लोगों ने उस महिला की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। I said to myself, please listen, I'm not wrong here. I have not done anything here. और मैंने सबको बोलने की कोशिश की कि मैं तो यहाँ पर बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। But no one was listening to me. लेकिन मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। And that time God, made me realize that be still and know I am God. और उस समय परमेश्वर ने मुझे इस बात का ध्यान दिलाया कि शांत रहे, स्थिर रहे और ये जान कि मैं परमेश्वर हूँ। And some days I was in unrest and anxiety in my life. और कुछ दिनों तक मैं अपने जीवन में बहुत ही अशांत रहा और बहुत ही चिंता में रहा। Because these accusations are not right. These are not correct accusations. क्योंकि ये जो इल्जाम लगाए गए वो सारे बेबुनियाद थे। And everyone in the company is talking about these accusations against me. और सारे लोग जो कंपनी में थे वो इन्हीं बातों के विषय में बात कर रहे थे मेरे विरुद्ध। And as if my name is completely ruined there. और मेरे जो नाम था वो वहां पर पूरी तरह से मटिया मेट हो गया। And everybody was looking at me with doubt. और सब लोग जो है मुझे शक की निगाहों से देख रहे थे। And my boss, HR, nobody is believing me. और मेरे मैनेजर और जो HR डिपार्टमेंट है वो भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा था। And that time I was in complete unrest. और उसमें मैं बहुत ही अशांत था। And God made me realize there. और वहां पर परमेश्वर ने मुझे इस बात को याद दिलाया that as a Christian manager in that company, you are holding your position as an idol. और इस बात को मुझे याद दिलाया कि एक मसीही होने के नाते, लेकिन क्योंकि तुम एक मैनेजर हो वहां पर, तुम इस बात को वो जो स्थान है तुम उसको मूर्त समझ बैठे। I've been there in 9 years in that company, and everything I saw flourishing and good going, everything. Nobody can point out any mistake in my work. और मैं उस कंपनी में 9 साल से हूँ और मेरे काम को देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैंने कुछ भी खराब किया है वहां पर। But God allowed this situation to break me. और लेकिन परमेश्वर ने इस चीज को होने दिया ताकि मैं टूट पाऊं। God made me realize that what are your idols secretly in your life. और परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि तुम्हारे जीवन में वो छुपी हुई मूर्ति कौन सी है। My good reputation, my job had become an idol for me. शायद एक अच्छा नाम कंपनी में, अच्छा काम जो है मेरे जीवन में मेरी मूर्ति बन गई। And God started shaking me in that area. और परमेश्वर ने मुझे उस जगह पर जो है उस जगह को हिलाना शुरू कर दिया। And that's what I learned, that Lord, I want to keep every idol in front of you, Lord. और मैंने जो है परमेश्वर को कहा कि मैं अपने सारे जो मूर्तों को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। Lord, I want to keep every idol, every blessings on open palm. और मैं सारी जो आशीषें हैं आपकी उनको एक खुले हाथ के साथ लेना चाहता हूँ। Why I'm in unrest? Because that idol is broken there. और मैं अशांत क्यों हूँ? क्योंकि वो जो मूर्त है वो वहां पर टूट रही है। And my name is ruined there. और मेरा नाम जो है वहां पर खराब बदनाम हो रहा And है। I understood I am loving something else more than my God. और मुझे समझ में आया कि मैं वहां पर अपने किसी और चीज से, अपने परमेश्वर से बढ़कर प्रेम करता हूँ। Is there anything in our life which has taken God's place and become idol in our life? क्या कोई ऐसी चीज हमारे जीवन में है जिसने परमेश्वर की जगह ले ली है? And today God desires that can we bring all our idols to God? और आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज को जो है परमेश्वर के सामने लेकर आए। It's not that God don't want us to succeed in our career. और ऐसा नहीं है कि
कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने 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 कार्य क्षेत्र में अच्छा that करें we don't do well in our business or whatever we do. या अपने काम धंधे में जो है हम अच्छा ना करें, ऐसा वो नहीं चाहता। Problem comes when we desire and we become, this things becomes an idol in our life. दिक्कत तब पेश आती है जब ये चीजें हमारे जीवन में जो है एक प्रकार की मूर्त बन जाती है The ambitions without Christ becomes an idol in our life. और मसीह को छोड़कर जो हमारे जीवन में अभिलाषाएं हैं वो हमारे जीवन में एक मूर्त बन जाती है Career without Christ becomes an idol in our life. और हमारा काम जो है यीशु मसीह को छोड़कर जो हमारा काम है वो एक मूर्त बन जाता है। And this is what God is teaching us, brothers and sisters, to bring all the idols, because He cannot work in our life when we are holding idols. और यीशु मसीह यही कह रहा है कि हम सारी मूर्तों को उसके सामने लेकर आए, क्योंकि इन मूर्तें जब तक हमारे जीवन में रहेंगी तब तक वो हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। So when we start, this King Jehoshaphat, when he started knowing God's ways, he started removing the idols from his life. तो यहाँ भी हम देखते हैं यही हुआ। ये जो राजा था यहोशापात, जैसे जैसे यहोवा के मार्गों को जानने लगा वो सब मूर्तें उसने हटा दी। Let us examine our life, brothers and sisters, today. तो हम भी अपने जीवनों का आज जो है आकलन करें। Are we really seeking God's ways in our life? क्या हम वाकई उसके मार्गों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? This message is not to condemn us, ये हमारी निंदा करने के लिए ये बात नहीं कही जा रही, to encourage us and to give us hope that we can reach there. बल्कि इसलिए कि हम जो है प्रोत्साहित हों कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। As we saw in Exodus 33, as Moses said, "Show me your way, Lord." जैसे कि हमने देखा कि मूसा ने कहा कि मुझे अपने मार्ग दिखा परमेश्वर। In Psalms 86, this is David's cry, "Lord, teach me your way." और वचन संहिता 86 में कहता है दाऊद कि मुझे अपने मार्गों की शिक्षा दे परमेश्वर। Often we are walking in this Christian life and maybe some fear, some unrest, some burdens we are carrying in our life. और इस मसीह जीवन में हम अक्सर कुछ ना कुछ भय, कुछ चिंता, कुछ फिक्र लेकर अशांति लेकर जा रहे होते हैं, Because our focus is somewhat today upon God's works only. क्योंकि हमारा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के कार्यों पर टिका हुआ है। God is calling us, brothers and sisters, to come up higher. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक और ऊंचे स्तर पर उसके साथ आए There is a complete rest prepared for His children. और एक पूर्ण रीति से जो है एक शांति जो है उसके बच्चों के लिए वहां पर तैयार की गई है। And we might say that, look, what about when I know God's ways? What about my situation? What about my needs? लेकिन हाँ ठीक है, मैं उसके मार्गों को तो जान जाऊंगा, लेकिन मेरी जो जरूरत है उनका क्या? As I spoke, Matthew 6:33. मत्ती 6 का 33 देखेंगे। We know that seek ye first the kingdom of God. सबसे पहले उसके राज्य की खोज करो। Can we say that seek ye first His ways? क्या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले उसके मार्गों की खोज करो All these things will be added unto you. और ये सारी चीजें जो है तुम्हारे लिए जोड़ दी जाएंगी तुम्हारे। The same chapter 32 says that your heavenly Father knows what you need. माइका 32 Matthew 6:33. मत्ती 6 का 32 और 33 Last verse. यहाँ लिखा है कि इसलिए पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। Yes. So he says your heavenly Father already knows. तो वो ये कहता है कि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है वो जानता है पहले से। So dear brothers and sisters, God wants us to bring to that maturity today. तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस परिपक्वता में पहुंचने पाए। Maybe till date our attitude has been, Lord, what you can give to me, what you can do for me. हो सकता है कि आज तक हम यही सोचते रहे कि हे परमेश्वर तू मुझे क्या दे सकता है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। But let's change our perspective today, Lord. I want to know your ways in my life. लेकिन आज हम अपने देखने के नजरिए को यहाँ पर बदलें कि मैं तुम्हारे मार्गों को जानना चाहता हूँ। God wants to take us deeper to build His body, His church. वो चाहता है कि हम उसके साथ रिश्ते में और गहराई से उतरें ताकि हम इस कलीसिया को बना सकें। You might be passing through some situations, some brokenness, some valleys in your life. हो सकता है कि आज आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हो, टूटेपन से या किसी ऐसी घाटी से निकल रहे हो। But like those disciples, we might have the secret cry, Lord, don't you care about me? I'm drowning. और शायद हम उन तेलों के प्रकार के जैसे ही आज उससे बोले कि हे यीशु मसीह, क्या तुझे चिंता नहीं? Do we have a complaint like Habakkuk had? क्या हमारे अंदर भी ऐसी शिकायत है जैसे कि हबक्कुक के अंदर थी? He was completely unrest, Lord, this injustice, that injustice, Lord, this suffering, what is this? उसके अंदर भी बहुत अशांति थी कि हे परमेश्वर, यहाँ पर उपद्रव है, वहां पर कुछ उपद्रव है। But when he changed his perspective to know God's ways, लेकिन जब उसने अपना देखने का नजरिया चेंज किया
परमेश्वर के मार्गों की ओर, he started rejoicing in that circumstances also. तो उसने हर परिस्थिति में जो है आनंद मनाना सीख लिया। And that's why Paul says, rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice in the Lord. और इसलिए पौलुस कहता है कि उसमें आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ सदा आनंदित रहो। Yes, in our own strength, we cannot know God's ways. हाँ, हम अपने सामर्थ्य में उसके मार्गों को नहीं समझ In सकते। our own flesh, we cannot know God's ways. अपने देह में हम उसके मार्गों को नहीं समझ सकते। We need the power, the help of Holy Spirit. हमें इसके लिए जो है पवित्र आत्मा की जो है सामर्थ्य की जरूरत है। His ways are higher. His ways are greater in our life. उसके मार्ग और उसकी समझ जो है हमसे बहुत ऊपर है। When we know God's ways, we will be ready to accept God's will very easily. और जब हम उसके मार्गों को समझ जाएंगे तो हम उसकी योजनाओं को भी जो है स्वीकार करने पाएंगे आराम से। Because all things work together for our good. क्योंकि सारी चीजें जो है वो मिलकर हमारे भले के लिए ही हो रही हैं। His ways are perfect for our life. और उसकी जो मार्ग है वो हमारे जीवन के लिए सिद्ध है। There is a need in His church to focus God's ways rather than God's works. और आज कलीसिया में जरूरत है कि उसके कामों से हटकर हम उसके मार्गों की ओर ध्यान लगाएं। Maybe you might be going through some misunderstanding in your life. हो सकता है कि अपने जीवन में किसी प्रकार की Maybe गलतफहमी से होकर आप जो है गुजर रहे हैं। any brokenness, any hardship that you might be going through हो today. सकता है कि कोई कठिन परिस्थिति या फिर कुछ टूटेपन से होकर गुजर रहे Maybe हो। any false accusations you might be facing in your life. हो सकता है कि कुछ जो है आरोप आप लगा रहे हैं। God is utter dependence on Him. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर पूरी रीति से निर्भर हो सके, That His wisdom is perfect for our life. और उसकी समझ जो है वो हमारे लिए सिद्ध है, हमारे जीवन के लिए काफी है। Let's shift our focus. Our prayer should be today onwards. और आज से हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, Lord, yes, I'm thankful for your works in my life. मैं आपके कार्यों के लिए अपने जीवन में आभारी हूँ, But Lord, I want to progress in my spiritual life. लेकिन मैं अपने इस आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। Like Moses, like David, teach me your way, show me your way, Lord. और जैसे मूसा और दाऊद ने कहा, तू मुझे अपने मार्गों को दिखा। I want to completely surrender all the idols to you. मैं अपने जीवन के सारी मूर्तों को आपको देता हूँ। When we leave this place, और जब हम इस जगह से जाते हैं, रुखसत होते हैं, let's go with renewed desire today. एक बदली हुई एक नई इच्छा के साथ जाएं That Lord, I want to know your God's ways, Lord, in my life. कि हे परमेश्वर, मैं आपके मार्गों को जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ अपने जीवन में। And may Lord help all of us, Holy Spirit help all of us to know His ways in our life. और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के मार्गों को समझ पाए अपने जीवन में। May Lord help us, amen. इसमें परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन। Thank you.